Hello, my amazing friends. I am Dr. Purti Trivedi and I welcome you for this wonderful webinar. This is the 16th webinar SK Media Tech team is completing. And yes, I am very much proud and very much happy to share with you that more than 15,000 plus people they who attended our SK Media Tech webinar and they are very much happy. They learn so many things and that is why we are working to spread positivity to the world. When this lockdown has started, we think that we just wanted to share few of the things that are the concept of the management or that are the things that nowadays in this competitive era all the people should have. And that is why we just think of that let us do a webinar on the weekly basis so that everyone can have upgrade themselves. Everyone have a few more information what they already have. So that is why we have doing a webinar. We are organizing webinar, and Dr. Purti Trivedi, I completed my pharmaceutical marketing PhD. I completed my MBA and having experience of a 15 year plus in the pharmaceutical industry. Dr. Atul Kumar Mishra. He is also completed his PhD in the management field and he is very much technologically upgraded. And Dr. Sujal Kumar Patel, he is a principal in one B.Ed college. So we all three people are working to spread a positivity to you. Now, today's topic is about the leadership and those people who wanted to have a certificate, I just request that you just be in this webinar, enjoy the sessions, learn whatever I am telling, and I will provide you 4 code. So when the code is given or when the link is given to you, you just have to write it down all 4 code and you will get your certification. So now what we will learn in this webinar, we will learn about this leadership. What we will learn who can be a leader, who is a leader, the difference between the managers and the leaders, what is leadership, factors of the what are the leadership style, leadership qualities, and at last, I will provide you 7 secrets of inspiring leaders. And by the end of this webinar, you will come to know that whether you wanted to be a good leader or you wanted to be a good manager. After all, it's your choice. But yes, those who are जो लीडर होते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और सबको अपने रास्ते पे सबको साथ लेके आगे बढ़ते हैं. So by end of this webinar, I will make you a leader. Who is the leader? अभी आपको 2 मिनट ये वेबिनार में इन्वॉल्व नहीं होना है, बस आपको 2 थिंग्स टीच करना है और चैट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपके मायने में या आप अपने आप को आपको क्या समझते हैं कि हु कैन बी अ गुड लीडर और हु इज द बेस्ट लीडर, या कुछ एग्जांपल आपके मन में क्या आता है एक लीडर के बारे में. वो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लीडर कैन बी. आप किसको लीडर मानते हैं? Write in the comment box. I'm waiting for you. Who can be a leader? A leader is a person who influences a group of people towards the achievement of his goal. एक लीडर का क्या है? अगर आप बिल गेट्स को माने तो बिल गेट्स ने जब अपना को वो जब सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपनी टीम को वो एक्सप्लेन किया, इन्फ्लुएंस किया, टीम बनाई. All the team work for the same goal or work for the same purpose or specific goal. So सारे लोग एक ही गोल पे काम कर रहे हैं. एंड वो रास्ता किसने दिखाया? वो रास्ता दिखाया बिल गेट्स ने. दैट इज कॉल्ड लीडरशिप एंड ही कैन बी अ लीडर. Now, the difference between the managers and leaders. See in the layman people, those people who didn't do MBA, उनको माइनर गैप नहीं पता होता है कि मैनेजर्स और लीडर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. अगर आप किसी का भी हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हम जब इंटरव्यू करते हैं तो पूछते हैं कि व्हाट यू वांटेड टू बी आफ्टर 2 year और 5 year. तो सभी लोग यही बोलते हैं कि दे वांटेड टू बी ऑन द गुड मैनेजरियल पोजीशंस, दे वांटेड टू बी एरिया मैनेजर लाइक रीजनल मैनेजर व्हाटएवर. सो उनके पास पीछे एक मैनेजरियल टर्म लग जाती है कि दे वांटेड टू बी अ गुड मैनेजर. बट
No one is telling that they wanted to be a good leader. Why? Because जाने अनजाने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसको मैनेजर और लीडर के बारे में इतना गैप नहीं पता होता है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जिसने पढ़ा हुआ है, एमबीए जिसने किया हुआ है, दे नो द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर्स एंड लीडर्स. और पहले से ही लीडर, मैनेजर कैन बी एनीवन. if you got a promotions you can be a managers. आप अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करते हो, देन ऑल्सो यू विल बी ऑन द गुड पोजिशन लाइक मैनेजर पोजिशन. बट लीडर होता है वो बॉर्न लीडर होता है, वो अपने एफर्ट से आगे बढ़ता है, वो एक विजन लेके आगे बढ़ता है, उनको पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए, चाहे कोई उसका साथ दे या नहीं दे. So this is the gap between the managers and leaders. The difference between the managers and leaders is the managers is a good administrator, whereas leader is the innovator. Managers can maintain, but leaders can develop. Managers controls everything. मैनेजर का काम ही यही है कि कंट्रोल करना, सब चीज सही नहीं हो रही है कंट्रोल करना, ये मत करो वो मत करो, ये करो ये करो वो. बट लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है इंस्पायर करना. आप कोई भी लीडर को देखिए, किसी को भी फार्मा इंडस्ट्री में देखिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए, बैंकिंग सेक्टर में देखिए या एजुकेशन सेक्टर में देखिए, एक लीडर वो ही होता है जो किसी को कंट्रोल किए बिना इंस्पायर करे. उनको अपने सपनों के लिए काम नहीं करना है लीडर को, उसको सामने वाले को अपना सपना दिखाना है और फिर उसको आगे काम करने के लिए आगे बढ़ाना है. सो यही एक लीडर का काम होता है. The manager is thinking about the short-term goal, whereas leader thinks about the long-term view. वो आज का नहीं सोचता है. A leader is thinking about after 5 years, after 3 years, after 10 years. Means उनका planning जो रहता है वो long term रहता है. Managers ask how and when, whereas leaders ask what and why. Managers initiate, whereas leader originate. Managers accept the status quo and leaders challenge the status quo. Managers do things right. Manager होता है, they do things right, but leaders do right things. So that this is how this is the difference between the manager and leader. आपको जिंदगी में कुछ भी आगे बढ़ना हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो नेवर से योरसेल्फ दैट यू वांटेड टू बी अ गुड मैनेजर. मैनेजर की पोजीशन आज है, कल पता नहीं होगी नहीं होगी. आज आपको प्रमोशंस मिला, पॉसिबल है कि आपको डिमोशंस मिल जाए. आज आपकी जॉब लग गई, एक टॉप पोजीशन पे हो जॉब पे, हो सकता है कि कल आप रिटायर हो जाओ, देन यू विल नॉट बी अ लीडर. सो मैनेजर कैन बी एनीवन, बट those people who are a leader, they can start from anywhere. Those people who is a leader, they just उनका जीरो से स्टार्ट होता है, टॉप पे जाते. फिर भी अगर पॉसिबल है कि लाइफ में ऐसा चांस आ गया कि वो जीरो पे आ जाते, तो भी लीडर्स होता है वो जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुंच जाता है. सो दिस इज हाउ द लीडर्स इज बॉर्न. जस्ट मिनट प्लीज. What's a leader anyway? A leader can be defined by an ability to get others to follow willingly. लीडर ऐसा नहीं है. लाइक मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर ने जो बोला एनी हाउ द पर्सन हैज टू डू. नहीं किया तो वो एक्शन लेते हैं, और फिर पता नहीं कोई भी पॉजिटिव एक्शन भी लेते हैं, नेगेटिव एक्शन भी ले सकते हैं. ये मैनेजर का काम है. फोर्सफुली वो काम कराते हैं, वो मैनेजर का काम है. बट लीडर का काम क्या है? किसी भी बंदे को वो काम विलिंगली कराए, और वो बंदा प्यार से करता है. अगर लीडर बोलता है कि आपको ये करना है, तो उसके फॉलोवर्स उसको वो काम करके देते हैं. दिस इज हाउ द लीडर ऐसी फौज नहीं है कि सब जैसे भेड़ बकरियां जैसे जाती है उसके साथ लीडर नहीं जा सकता. लीडर की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है. लीडर का अपना खुद का नजरिया होता है. लीडर का स्पेसिफिक विजन होता है. लीडर का स्पेसिफिक गोल होता है. और वो गोल जब सबके सामने शेयर करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयर करता है, तो उसके फॉलोअर बढ़ते हैं और सब उस पर बिलीव करते हैं, और सब लोग उसके बाद एक लीडर के गोल के साथ अपने गोल को एसोसिएट करते हैं और सिनर्जिस्टिकली आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज लीडर? एप्पल के सीईओ आपने देखा ही होगा
Steve Jobs, the leadership, the ability to influence a group towards achieving a goal. स्टीव जॉब ने जब आईफोन सर्च किया होगा तो वो उन्होंने उनका स्पेसिफिक थीम था, उनका था कि पहले फर्स्ट सेफ्टी चाहिए उनको मोबाइल में, सेफ्टी पर्पस चाहिए, उसके बाद कोई वायरस नहीं आए ऐसा फंक्शन चाहिए, तीसरा कि यूनिक होना चाहिए, चौथा अलग से फैसिलिटी होनी चाहिए, पांचवा टोटली वर्ल्ड से डिफरेंट होना चाहिए. सो दिस इज द इनोवेशंस that Steve Jobs has. But then when he penetrates these to his employees, और उसके बाद वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ पूरी टीम होनी चाहिए. उसके बाद उसकी टीम ने उसको सपोर्ट किया और पूरा आज आप जानते हो कि एप्पल कितनी बड़ी ब्रांड है. सो अ लीडरशिप हैज एन एबिलिटी to influence a group towards the achievement of a goal and the management use of authority inherent in designated formal rank to obtain compliance from organizational members. So this is how the leadership is that. Now see this photograph. And now this is the time to announce my first code. First code is the best, B-E-S-T, best. Now think of who is the best leader out of these all. क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी है वो बेस्ट लीडर हो सकते हैं? क्या आपको लगता है केजरीवाल जी राइट लीडर हो सकते हैं? या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या राय है? अगर नरेंद्र मोदी बोले कि रात को थाली बजानी है तो सब लोग थाली लेके बजाना चालू कर देंगे, वो ज्यादा सोचेंगे नहीं, बिकॉज दे हैव अ फेथ ऑन दैट लीडर. एंड दिस इज हाउ द लीडरशिप वर्क्स. दिस इज कॉल्ड लीडरशिप. जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते वो समुंदर को भी पत्थरों के पुल बना देते. और एक लीडर वही है चलता रहता है पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. वही एक लीडर की क्वालिटी है. एक लीडर की क्वालिटी है चलते रहना, एक लीडर की क्वालिटी है एक पर्पस होना लाइफ में, एक लीडर की क्वालिटी है एक विजन होना लाइफ में, एक लीडर की ये क्वालिटी है कि टीम बिल्ड को करके सबके साथ फेथ से आगे बढ़ के एक ट्रस्ट क्रिएट करके सबके साथ अपने सपने को साकार करें. Now, there are the three basic P's that required for the leadership, and these P's are a person, people, and purpose. Now we will see one by one. Persons, a leader is leadership a position of office or an authority? Do you think that? Just think. क्या आपको मैनेजर की पोजीशन मिल जाएगी तो क्या आप गुड लीडर बन पाएंगे? जस्ट थिंक इट फॉर 1 मिनट. क्या आप आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छे मैनेजर की पोजीशन होती है उससे वो गुड लीडर बन जाता है? व्हाट यू थिंक? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. Is leadership an ability in the sense that he is a leader because he leads? What do you think out of it? Just write in the chat. No. A leader by its meaning is one who gets first and leads by example so that others are motivated to follow. लीडर ऐसा होता है कि जो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है, वो जो आगे बढ़ने के लिए बेस्ट एक एग्जाम्पल क्रिएट करके सबको इंस्पायर करता है, सबको मोटिवेट करता है और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है. To be a leader, a person must have a deep-rooted commitment to the goal that he will strive to achieve it, even if nobody follow him. एलन मस्क जब स्पेस में जाने की बात हुई, बोला कि मंगल ग्रह पे उसको घर बनाना है, सबको भेजना है. किसने अचीव किया होगा? स्पेस एक्स. आज नासा खुद एलन मस्क के पास से खरीद रही है, स्पेस के पास से खरीद रही है. वो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको ऐसा रॉकेट बनाना है तो किसने उस पर बिलीव किया? बट अ लीडर इज हैविंग अ वेरी डीप कमिटमेंट टूवर्ड्स हिमसेल्फ. और वो डीप कमिटमेंट से ही वो आगे बढ़ता है. वो दुनिया भले ही उसको सपोर्ट करे नहीं करे, पर उसका माइंडसेट वेरी मच क्लियर है कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनको कैसे आगे बढ़ना है. सो डीप रूटेड कमिटमेंट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीडर्स के पास होता है टूवर्ड्स अचीविंग द गोल, इवन दो वेदर एनीबडी बिलीव हिम और नॉट बिलीव हिम. और जैसे बोलते हैं ना कि रास्ते खुद ना खुद, जैसे बोलते हैं हम दो ही चले थे राह पर और रास्ते बनते चले गए, वैसे ही एक लीडर के साथ होता है कि लीडर खुद ही चलता है राह पर और रास्ते बनते जाते.
और भले ही वो रास्ते सक्सेस के सामने लेके जाए, सक्सेस मिले या नहीं मिले, पर तजुर्बा तो जरूर ना जरूर मिलता है। Leader has a purpose. A requirement of a leadership is a personal vision, ability to visualize your goal as an accomplished fact, a hiring already achieved. It is said that anything in the life has happened two times. First, it happens in your mind. दुनिया में जो भी चीज है वो दो टाइम बनती है, पहले बनती है अपने माइंड पे, और सेकंड इट बिकम्स ऑन रियलिटी. सो अ लीडर knows how to visualize everything, knows how to visualize his goals, and then working very hard to accomplish it. A very essence of leadership is that you have to have a vision. You can't blow an uncertain trumpet. That is not possible if you wanted to be a good leader. आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से आपकी टीम को आपको सपोर्ट करना है, और किस हिसाब से टीम को मोटिवेट करके इंस्पायर करके एक स्पेसिफिक गोल टूवर्ड्स उन सब का एफर्ट्स काम में लगाना है. ये एक लीडर का क्वालिटी होता है. The leader has to be a practical and realistic, yet must talk the language of visionary and idealistic. अगर कोई लीडर होता है वो नेगेटिव बोलेगा, या कोई लीडर ऐसा होता है कि जो हमेशा ऐसा ही बोलेगा कि ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा बोलेगा, तो वो लीडर नहीं है, वो एक मैनेजर ही है. लीडर तभी कहलाता है जब वो ऑप्टिमिस्टिक सोचे. लीडर तभी कहलाता है कि जब वो विजनरी लैंग्वेज में बात करे और एक आइडियलिस्ट की तरीके से बात करे. So why are some individuals are more effective than others that influence the people? The effectiveness in leadership has been attributed to persuasive skill. एक लीडर के पास persuasive skill होना बहुत जरूरी है. तभी तो सब लोग उनको फॉलो करेंगे, तभी तो सब लोग उनको मानेंगे, तभी तो सब उनके जो सराउंडिंग है वो कॉमन पर्पस, कॉमन विजन, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे. So persuasive skill is the basic requirement that the leader should have. A leader should have a leadership style. See, this is the human psychology that all people are not the same like. किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, सबका अलग थिंकिंग रहता है, और सबको एक थिंकिंग में डालना, सबको एक कॉमन गोल पे डालना, वो ही लीडरशिप स्टाइल है. तो लीडरशिप स्टाइल एंड देन पर्सनल एट्रीब्यूट टू द लीडर, ये थ्री चीज इफेक्टिव लीडरशिप के एट्रीब्यूट है. And third one is the people. To be a leader, one must have followers. सबको साथ लेके चलना. One person cannot be a leader, but the persons who inspire a group of people, the persons who motivate a group of people, the persons who is showing a special vision to a group of people, he can be a leader. महात्मा गांधी जी क्या है? महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी सब देश के वासी, भारत देश के वासी सबको इंडिपेंडेंस चाहिए. महात्मा गांधी जी को भी चाहिए, बट उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सबको इंस्पायर किया, उन्होंने पीपल के साथ मिलकर काम किया और सबको एक रास्ता दिखाया कि ये रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी. And then he becomes one of the best respected leaders throughout this world. So to be a leader, one must have a follower. To have a follower, one must have a trust. महात्मा गांधी जी पे सबको ट्रस्ट था कि ये हमको आजादी दिलाएंगे. How do you win that trust? Why would others trust you? And most important, are you worthy of that trust? वो एक लीडर को सोचना चाहिए, वो एक लीडर को क्वालिटी होना चाहिए, और पीपल सब तभी ट्रस्ट करेंगे if you are capable of it. Now let us come to this topic. The main topic is what is leadership. Leadership hack. What is basically leadership? Now before proceeding to this, I just think that you think yourself. What is leadership? आपके माइंड में leadership के बारे में क्या आता है? Just write in the chat box. Leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organizations in the way that makes them more
कोहेसिव एंड कोहेरेंट। इसमें मत जाइए। एक लीडर की यही चीज है कि वो पीपल को इन्फ्लुएंस करता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो गोल अचीव करने के लिए सबको इंस्पायर करता है, आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है, टीम को साथ लेके आगे बढ़ता है। Leaders carry out this process by applying their leadership knowledge and skill. This is called a process leadership. Process leadership भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि लीडर्स उनका नॉलेज और स्किल्स को गैदर करके आगे बढ़ता है। That is called a process leadership. We know that we have a traits that can influence our actions, and this is called a trait leadership. Now see, this is the trait theory of a leadership where the leaders hides intelligence, extraversion, fluency and other traits and then followed. So trait leadership में क्या होता है? लीडरशिप इज इक्वल टू जो लीडर होता है वो फॉलोवर क्रिएट करता रहता है। और प्रोसेस थियरी ऑफ लीडरशिप में क्या होता है? प्रोसेस थियरी लीडरशिप में लीडर सबको ऑब्जर्व करता रहता है, इंटरैक्ट करता है और उसके बाद अपने फॉलोअर्स को क्रिएट करता रहता है। Now let us further go to this leadership concept so that you come to know very deeply that the leadership. I am 100% sure even though if you didn't completed your MBA or even though if you didn't do MBA, by end of this webinar you will know what is the leadership. So leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving common goals. सब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि मैनेजरियल पोजीशन पे अलग होते, बट दोज पर्सन्स हु मोटिवेट्स अदर्स, हु मोटिवेट्स देयर टीम, उनका रिस्पेक्ट ज्यादा होता है और वो मोटिवेट करके सामने वाले बंदे को मोटिवेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल टूवर्ड्स काम कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है और फिर वो काम करता है सब लोग और फिर वो लीडर भी काम कराता है। The process of encouraging and helping others to work enthusiastically towards an objective. एक लीडर ऐसा नहीं होता है, ये मुर्दा लोगों की फौज नहीं है। एक लीडर का काम होता है सबको खुश रखे, सबको एंथ्यूजियाज्म में रखे, सबको एंकरेज करे और हेल्प करे। एक मैनेजर को कोई हेल्प के लिए पूछता है तो वो नहीं करता है। मैंने देखा है ऑटोक्रेटिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल है, मैनेजर की पोजीशन पे होता है, बट मैनेजर की पोजीशन पे एंकरेजिंग या हेल्पिंग ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट ये ज्यादा नहीं चलेगा। In this competitive era, if you wanted to survive in the better way, if you wanted to get respect and you want to make your own path, you have to build the leadership quality and then only you will be able to survive and you get the job satisfaction over that. So the process of encouraging helping others to work enthusiastically towards an objective, or Ellen Kidd कहते हैं stated that the leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to make something extraordinary for the benefit of an organization. Now, what are the essence of a leadership? Leadership के लिए क्या होना चाहिए? What is the essential requirements of a leader? So the essence of a leader is the leadership refers to ability to one individual to influence others. एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर सके। उनको फेथ होना चाहिए कि ये अगर बंदा ऐसा बोलेगा तो ये मेरा काम हो जाएगा या मैं आगे बढ़ूंगा, ये अदरवाइज ये मेरे वेल अच्छे के लिए ही बोल रहा है। द इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि सामने वाला बंदा चेंज हो जाए या उनका थिंकिंग चेंज हो जाए या वर्किंग पैटर्न चेंज हो जाए। द चेंज ऑफ बिहेवियर इज पोस्ट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द शेयर्ड गोल। कोई लीडर कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल करना वो एक लीडर की क्वालिटी है और वो लीडर
सबसे पहले इन्फ्लुएंस करता है, देयर बिहेवियर चेंज होता है सब टीम का। उसके बाद every team members or all the people in the organizations, they works towards having a specific goal of an organization. The person influencing others or a leader possesses a set of qualities or characteristics which he or she to influence others. And leadership is a group phenomenon. तो यही चीज है, दिस आर द एसेंस ऑफ अ लीडरशिप, और ये एक लीडर में होना चाहिए। नाउ what is leadership and management? Management is the process of planning, organizing, coordinating, directing, controlling and the activities of others. अगर आपने एमबीए किया है या मैनेजरियल फील्ड से आते हो तो आपको मैनेजमेंट की प्रोसेस ऑलरेडी पता होगी, बट इवन दो इफ यू डिडंट डू एमबीए, डोंट वरी ऑफ इट। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको एमबीए की कोई जरूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल and how you can be a good leader in your life. So the management is the process of planning, organizing, directing and coordinating and controlling all the activities. This is all the managers can do, all the can do. But a leadership is the process of influencing the purpose of achieving a shared goal. एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम गोल होता है, उस पे काम कराने का, इन सब लोग को इन्फ्लुएंस करने का, और देन सब लोग को साथ में लेके चलने का एक लीडर का काम होता है। So management involves coping with the complexity, whereas leadership is cope with the change. लीडरशिप अगर कोई बिलीव करता है मैनेजर इज नॉट अबाउट टू कम अप विद द चेंज, और अगर वो मैनेजर चेंज करता है तो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज आएगा। वेरएज अगर कोई लीडर चेंज कराने के लिए बोलता है तो वो चेंज फास्ट एक्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई लीडरशिप इज फार अहेड देन द मैनेजमेंट। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप। Now, formal leadership क्या है और informal leadership क्या है? The formal leadership occurs when the manager leads by exercising formal, उसको use करते हैं exercising like formal authority. The exercise of formal authority through the assignment duties derives from the manager's official positions within the organization hierarchy or authority. Any employee who is assigned to have a managerial position has an opportunity and responsibility to access formal leadership. कुछ नहीं है, फॉर्मल लीडरशिप है क्या? फॉर्मल लीडरशिप मतलब आपको प्रमोशन मिला और आप मैनेजर बन गए, या आपको नई जॉब के लिए एज ए मैनेजर की पोजीशन पे असाइन किया, दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मल लीडरशिप। देन यू बिकम अ फॉर्मल लीडर, not original leader, just a formal leader means the company has assigned you as a leader. Now, what is informal leadership? Informal leadership is arise when the persons without a formal authority is influence it. इनफॉर्मल लीडरशिप के लिए आपको डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, आप सबके साथ हो और फिर आप सबको इन्फ्लुएंस करते हो आगे बढ़ने के लिए। एक अच्छे लीडर का क्या उद्देश्य होता है? एक अच्छे लीडर का उद्देश्य टीम को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पे हुकूमत करना होता है। वही गैप हमने सीखा अब तक कि एक मैनेजर और एक लीडर के बीच में क्या गैप होता है। Now, the practice of a leadership. Now, see, this is a picture. Situations, then communications. This is a follower, and C is a leader. Now, just write in the chat box that what you learned from these pictures. I'm waiting. Write in the chat box that what you learned from these pictures. The practice of a leadership क्या होता है? दो एरा किया हुआ है, ऐसा एरा है। This is communications. मतलब एक लीडर दूसरे टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करता है, बात करता है, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस निकालता है, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। सो कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन इज द कोर क्रक्स और core qualities that any of the leaders should have. Now, what are the factors of a leadership? The factors of a leadership are the leader,
follower. The leader, you must have an honest understanding of who you are, what you know, and what you can do. To be a successful, you have to convince your follower, not yourself or your superior, that you are worthy of being followed. ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। उनको उनका विजन पता होना चाहिए, उनको क्या काम करना है, वो किसके लिए बने हुए हैं और किस हिसाब से काम करेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अपनी टीम मेंबर को कैसे समझाना है और अपने फॉलोअर्स यानी कि सब लोग उनका कहना माने, ऐसा कैसे वो पोजीशन कैसे क्रिएट करनी है। So now what is follower? A follower. Different people require a different style of a leadership. The fundamental starting point of having a good understanding of human nature, such as the needs, emotions, and motivation, and how we know and do attributes. Leaders can have to create followers. और फॉलोअर कैसे बढ़ते हैं? और फॉलोअर तभी बनते हैं जब उनको पता होता है कि सब लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट किसमें है। ये एक ह्यूमन नेचर ये है कि उनको समझना है कि सब लोगों को क्या चाहिए और वो किस हिसाब से बोलेंगे तो सब लोग उनको फॉलो करेंगे। वो एक नीड्स वो हो सकता है नीड्स फॉर एग्जांपल वो कुछ इंसेंटिव अनाउंस करे या कुछ स्पेशल कोई प्रोग्राम करे या कुछ भी कोई भी रास्ते निकाल के अपनी टीम को वो मोटिवेट करे, इमोशंस के साथ उनके साथ एसोसिएट हो और मोटिवेट करे। The leadership quality should have a good communications. Yeah, already we have taken this point and situations. So all the situations are different. What you do in one situation will not always work in another different situations. So leaders should know, they know contingency plan. और कभी ऐसा possible है कि the situations or maybe wasn't what he thinks so. But a leader should never lose his hope and go ahead. Situations, all the situations are different. What do you do in one situation will not always work in another. You must use your judgment to decide the best course of an actions and the leadership style needed to each situations. ये होना चाहिए. Now let us proceed towards लीडरशिप स्टाइल। हम लोगों ने ये सीखा आपसे पहले कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप स्टाइल के बारे में अभी हम देखते हैं कि कौन सी स्टाइल से बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, बट कौन सी स्टाइल से आप इफेक्टिव लीडर बन सकते हो। तो बेस्ड ऑन ऑथोरिटी, based on task versus people emphasize, Likert 4 styles based on assumptions and entrepreneurship leadership styles. So these are the few styles of the leadership. A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Now another quote. This is the time to announce another quote, and another quote is the leader. Leader. First quote is the best. Second quote is leader. So those who are thinking for the certifications, who want the certificate, second code is the leader. What the leadership style work best for me or my organizations? There are many leadership styles available to choose. Different styles were needed for the different situations and each leader needed to know when they exhibit a particular approach. तो बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, हम आगे देखते हैं कि क्या लीडरशिप स्टाइल अलग अलग है। There are so many styles are available for the leadership, but 4 basic style जो है leadership के बारे में, these styles are autocratic leaderships, bureaucratic leaderships, laissez-faire leaderships, and then democratic leaderships. We will go and learn each one by one that what are these leadership is all about, or the styles of the leadership. Now, first autocratic leadership. Before proceeding towards this style, you just think of autocratic leaderships अपने लाइफ में किसको देखी है, आपको थिंक करना है, just write in the chat box. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? मैं आपको ये फोटो दिखाती हूँ. बिफोर प्रोसीडिंग द टैक्स यू जस्ट सी दिस फोटो. किसका फोटो है? राइट इन द चैट बॉक्स. ये फोटो देख के आपको पता चल जाएगा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है. मेरे को टैक्स में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So the photo is about Hitler, and
के साथ बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है, बट हिटलर का नाम सुनते ही ऑटोक्रेसी मन में आ जाती है और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप की लीडरशिप है. So, under the autocratic leadership, all the decisions making powers are centralized in the leaders as and direct dictator leaders. They do not entertain any suggestions. कोई भी suggestions आता है, autocratic leaders don't accept it, don't go towards it, don't proceed towards it. उनका डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही बंदा करता है, खुद लीडर, खुद गब्बर. It permits quick decision making, as only one person decides the whole group and keeps each decision to himself until he feels it is needed to be shared with the rest of the group. वो अपना डिसीजन सबके साथ शेयर नहीं करता है, वो अपना डिसीजन अपने आप रखता है. उसको जो टाइम पे आगे बढ़ना है या डिसीजन लेना है, सबके साथ शेयर करना है, वही टाइम पे आगे शेयर करता है. High degree of dependency of leader and may be valuable in some times of the business where decisions needs to be. So, autocratic leadership is greatly criticized. Hitler was awarded Germany's highest award of bravery of the Iron Cross, asked the physician Werner Hessen to recommend a reliable method of suicide. Hess suggested combining dose of a cyanide with a gunshot of a head. So this is how this Hitler was thinking. Autocratic leadership is not all the bad. Autocratic leadership is also useful when sometimes the most effective styles to use when new or untrained staff is there. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अपना घर बना रहे हो या आप कुछ जैसे कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा है, तो अनएम्प्लॉयड वुमन जो अनएजुकेटेड जो स्टाफ रहता है, अनएजुकेटेड जो वर्कर रहते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो तो ऐसे ही टाइम निकाल लेंगे. इफ यू डोंट बी स्ट्रॉन्ग और आप ऑटोक्रेटिक नहीं बनोगे. सो इन दैट कंडीशंस ये लीडरशिप स्टाइल काम में आती है. न्यू अनट्रेंड स्टाफ रहता है, उधर ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल काम में आती है. इफेक्टिव सुपरविजन कैन बी प्रोवाइड ओनली थ्रू detailed orders and instructions provided through. Staff do not respond to any of the other leadership styles and limited time in which to make a decisions or managers powers changed by staff. ये सारी कंडीशंस में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वर्क करती है, बट वो कंडीशंस में जिधर स्टाफ टेंस में आ जाता है, स्टाफ एग्री नहीं करता है, स्टाफ रिसेंटफुल रहता है, स्टाफ एक्सपेक्ट्स गुड ओपिनियन फ्रॉम द लीडर्स, या स्टाफ एक्सपेक्ट करता है कि लीडर्स उनको पूछे. हाईली एजुकेटेड स्टाफ है और हाई टर्नओवर और एब्सेंस एंड वर्क स्टॉपेज रहता है, लो स्टाफ मोरल है, उन कंडीशंस में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम में नहीं आती. Second style is the bureaucratic leadership style. Now, what is bureaucratic leadership style? The manager, by the book, everything gone according to the procedure or a policy. पूरा जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 9001, 2000, 10,000, जो लिखता है वो बंदे सब करते हैं. उस हिसाब से जो लिखा है, जो पॉलिसी है, उसको ही फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना. दिस इज कॉल्ड bureaucratic leadership style. A police officers, not a leader, enforce the rules. ये एक एग्जांपल है पॉल ट्यूटर सर का, ऑरेंज कंट्री चॉकर्स के बारे में. रन बाय द फादर एंड सन टीम पॉल ट्यूटरसन एंड पॉल ट्यूटर जूनियर, ऑरेंज कंट्री चॉकर्स makes a team and custom made choppers. Lance Armstrong बाइक, वो बाइक, जेट बाइक, वो सारे बाइक उन लोगों ने बनाया हुआ है. मैं दिखाती हूँ आपको. A set of American choppers. This is the example of bureaucratic leadership style. जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, bureaucratic leadership कहलाता है. This is the most effective when the staff performing routine tasks over and over. कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या जैसे हमने ये बताया बाइक का मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिकन चॉपर, तो the same thing the person has to do again and again. So ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे तो दिस इज वेरी इफेक्टिव. स्टाफ नीड्स टू अंडरस्टैंड सर्टेन स्टैंडर्ड और प्रोसीजर. वो प्रोसीजर को मेंटेन करना रहता है. अगर स्टाफ नहीं समझते हैं
तो ये बहुत दिक्कत की बात है, इसीलिए ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप उसमें काम आती है। स्टॉप परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर्स हैंडलिंग कैश। कैश का जिधर रहता है, जैसे बिग बाजार में हम देखते हैं, रिलायंस में, तो कैश का काउंटर जो करते हैं, मैनेज करते हैं, या बैंकिंग में हम देखते हैं, तो उधर वो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप चलती है, क्योंकि उधर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में, सॉरी, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में प्रोसीजर टू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर टू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बट दिस लीडरशिप इज इनइफेक्टिव when the work habits form that are hard to break, especially if they are no longer useful. Staff lose their interest in their job, क्योंकि सेम काम ही करना है, कंटिन्यूस वही काम करना है, तो उनको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, उनको काम में मजा नहीं आएगा। स्टाफ डू ओनली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड नो मोर। वो चीज तो है ही, स्टाफ को तो जितना बोलेगे उतना ही किया करेंगे। नाउ another is a participative leadership. Participative leadership क्या है? The democratic leadership style favors decision making of the group. इसमें सब लोगों को या स्टाफ को पार्टिसिपेट कराने के लिए बोला जाता है कि आप उनको पार्टिसिपेट करें, अपना रिकमेंडेशंस दें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। So this is the leadership style and this is very effective. The decisions of the democratic leaders are not uh, uh, unliterate like with an autocrat, because they arise from the consultations, the group members, and participation by them. So, consultative work, process of consultations before decisions are taken, और persuasive रहता है, leaders take decisions and seek to pursue others that the decisions are correct. सबको पार्टिसिपेट करके काम करते हैं, उनका सजेशन लिया जाता है, और उसके बाद when डिसीजन लेते हैं उसमें भी सबको पार्टिसिपेट करके, परsuasive करके, समझा के आगे बढ़ते हैं। This is the example of participative leadership style. Goshen, Carlos Goshen, president of a chief executive officers of Renault France president and chief executive officers of Japan. उन लोगों ने क्या किया, सबको टीम में साथ में लेके, he believed that the change in the organization culture should come from the bottom level and not forced from the top management. सो फर्स्ट बॉटम लेवल को चेंज किया, उनको समझाया, उनका पार्टिसिपेशन लिया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर आगे बढ़े। This is a very effective leadership styles when people wants to keep stuff informal that matters that affect them. Wants staff to share in decision making or problem solving, wants to provide opportunity to the staff, और large scale complex problems है, उनका solution चाहिए, तो इस conditions में ये change must be made of the problem solved that affect the staff, और want to encourage team building and participation, सबको कराने, तो उसमें ये leadership style most effective रहती है। Now, democratic leadership style should not be used when not enough time to get everyone's input. ऐसा पॉसिबल है। मुझे याद है कि मेरे एक बॉस थे, मैंने उनको पूछा कि सर ये डिसीजन तो लिया है, बट कैसे सब टीम को कैसे बताएं, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन वन ऑफ द मैनेजर पोजीशन। उनको मैंने बताया कि दिस इज अ चेंज, this is something little bit technical decisions, how we can say to the team। तब उन्होंने बताया कि see, the leaders sometimes are required to take a decisions and they just have to tell them। उनको पूछना नहीं है, उनको बताना नहीं है, उनको सिर्फ डिसीजन अप्लाई कर देना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप पूछते हो तो वो जो मैटर है वो ज्यादा स्पॉइल हो जाती है। सो वो डिसीजंस लीडर्स को लेना पड़ता है, but it is not effective in the democratic leadership styles, can't afford mistakes, managers feels threatened by these types of the leadership। क्योंकि क्या होता है कि जिसका बड़ा ग्रुप होता है उसमें भी ऐसा होता है कि लीडरशिप में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर की टीम होती है, या उसके सामने दूसरे व्यू पॉइंट वाले टीम मेंबर की भी टीम होती है। then again the democratic leaders comes under the dilemma that
कौन सी बात को वो सही माने, किस हिसाब से वो आगे बढ़े। एंड फोर्थ इज द लीडर्स or a fair or a free range style. So a free range style leaders does not lead, but it leaves the groups entirely on itself, such as the leaders allows maximum freedom to subordinate. Uh, this is a highly motivational as the people's controls over their working styles. उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आपको जैसे करना है आप कीजिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो की जाती है। और nowadays स्पेशली टू द वेस्टर्न कल्चर्स, इफ any of the organizations is following, then this leadership style is very much effective. This is an effective style where the staff is highly skilled, experienced, and educated. The staffs have a pride in their work and drive to do the successful on their own. And outside experts such as the staff specialist होते, consultant होते, तो इन experience होते, trustworthy होते, in such conditions, this leadership style is very useful. But it is not useful where the staff feels insecure or unavailability of a manager. The manager cannot provide a regular feedback to staffs on how well they are doing. ये सब पॉसिबल ही नहीं है। So इस conditions में managers unable to thank staff to their good work. And manager does not understand his or her responsibility and hoping the staff to cover him or her. So in such a conditions, this leadership style will not work. Now these are all the four leadership styles. These are the four basic leadership styles. Sorry. Now another leadership style है that is the transformational leadership style. उसमें क्या होता है कि सब लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। महात्मा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था महात्मा गांधी जी ने का, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया, सबके इंटरनल फीलिंग को चेंज कर दिया, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ को, थिंकिंग पैटर्न को, सबको ट्रांसफॉर्म कर देते। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, and this leadership is extremely powerful. Now, another is a transactional leadership style. It emphasizes getting things done within the umbrella of a status quo. In opposition to transformational leadership, by the book approach, the person works within the rules. This is the transactional leadership. जो आपको बताया गया है वो ही चीज आपको करना है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। और अगर वो नहीं करता है तो लीडर उसको नहीं बिलीव करता है। This is little bit related with bureaucratic. Now, situational leadership. Situational leadership क्या है? A good leader will change intuitively between the styles according to the peoples and what they are dealing with. They are often referred as the situational leadership. You know, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैनेजर्स को कंटिजेंसी प्लान करना चाहिए। कंटिजेंसी प्लान क्या है? ये एक ऐसा प्लान है कि अगर कोई वर्सन कंडीशंस आ गई तो उनको कैसे कॉप अप करेंगे। तो सेम वे दिस इज अ सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई तो वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। दिस इज द सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। एंड देन सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल। सर्वेंट लीडर मीन्स सर्वेंट फर्स्ट। It begins with the heart inspired to serve first, not to lead. सबको हेल्प में आना है। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप, किसी को भी कुछ भी जरूरत पड़े सब साथ में लेके काम में आगे बढ़ना है। नाउ लेट अस सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। हिटलर, आपको पहले सिर्फ फोटो देखना है, आपको रीड नहीं करना है और आपको थिंक करना है कि ये कौन सी स्टाइल का लीडर है। हिटलर डू व्हाट टेल्स, और उसका ये जो लीडरशिप स्टाइल है दिस इज ऑटोक्रेटिक। डोनाल्ड ट्रम्प, कम विथ मी, सपोर्ट करता है सबको, ऑथोरिटेटिव लीडर है। वॉरेन बफेट, पीपल कम फर्स्ट में बिलीव करते हैं, एफिलेटिव लीडर है। बराक ओबामा क्या है? बराक ओबामा विजनरी लीडर है। कोई कोचिंग में है तो कोचिंग लीडरशिप है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। पुतिन कमांडिंग लीडरशिप है। So ultimately, what is the conclusions we are getting with these? These are the leadership styles. Three factors that influence with the leadership styles to use. The manager's personal background,
थ्री फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर का अपना खुद का पर्सनल बैकग्राउंड, उनका क्वालिफिकेशंस, उनका नॉलेज, उनका वैल्यूज, उनका एथिक्स, उनका एक्सपीरियंस एंड देयर बिहेवियर एंड द रीजन ही इज द डेडिकेशन इज वर्किंग विद। सो एक लीडर बनने के लिए मैनेजर्स का बैकग्राउंड वर्क करता है। स्टाफ बीइंग सुपरवाइज्ड, staff individuals with different personalities and backgrounds should be supervised. A leadership style will vary depending upon the individual staff. It totally different. If you are a worker kind of the people, then your leadership styles will be different. But if you are highly educated people, if you are working in the Google like company or Facebook like company, Amazon like company, you are highly technically upgrade, then the leadership styles should be different. The organizations किस हिसाब का ऑर्गेनाइजेशन है उस पे भी डिपेंड होती है आपकी कौन सी लीडरशिप स्टाइल रहती है। The traditions, the values, the philosophies, and the concerns organization influence how the managers act. For example, Ratan Tata, आप देखो तो Ratan Tata is a business, he's a good leader, he's a business icon. So उन conditions में autocratic leadership उधर काम नहीं करती, बट पॉसिबल है कि दूसरी लीडरशिप स्टाइल लाइक परsuasive लीडरशिप स्टाइल काम करती है, बहुत सारी करती है, पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल काम करती है। तो दिस आर द थिंग्स द लीडरशिप मॉडल्स फ्रॉम द इंडिया। आपने देखा होगा ये सारे लीडर्स हैं, ये सारे इंडियन लीडर्स हैं और हम सब इन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। He ignited new capability in the people, not only in the US but around the world. Barack Obama, a capability that will be tested rapidly in the future. Nevertheless, the capability to be inclusive, the perseverance in the face of early failure, courage of a face issues head-on and be calm and confronted with the calmity. Obama is the great examples of this 21st century leadership. अब जब भी ओबामा सर का फोटो देखे आपको लगता है कि स्माइलिंग फेस, द एनर्जी इज हैविंग, whenever he is speaking everybody love to listen him. So this is the leadership style. अभी हमने लीडरशिप स्टाइल देखा, अभी नेक्स्ट नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर. Now what are the qualities the leaders should have? First is the humanity. Should be a best person. He should think the persons as the other human being is should thinking. ह्यूमैनिटी होनी चाहिए. अब्राहम लिंकन आप देख लीजिए, पॉप जॉन पॉल, ये सारे में ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट इंक्लूड है. एक तभी आजकल बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्था है कि जिसके लीडर बनते हैं और बहुत सारे लोग विलिंगली जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनका साथ देके एक पर्टिकुलर गोल के साथ आगे बढ़ते हैं और वो रीजन को, वो रिलीजन को जैसे सब जगह स्प्रेड करते रहते हैं. सेकेंड, लीडर्स वर्क विद इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी होना चाहिए लीडर में. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको वो चीट कर ले, कि ऐसा कोई थिंकिंग होना चाहिए, नेगेटिव अप्रोच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. इंटीग्रिटी के साथ, फुल फेथ के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ, 100% कमिटेड, ही इज कमिटेड टू हिज वर्क. सो उस हिसाब से उसको काम करना चाहिए. Decisiveness, a leader's ability to step up and make a decision. Decision making skill is the basic quality of a leadership, and the leaders should take a proper decisions. Then fourth is a take a risk. The leaders should have encourage and act situations where the results aren't assured. नरेंद्र मोदी जी क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया, दैट इज कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग. एक लीडर ने being a president of the country of 137 crore people, he take a decision. और वो डिसीजन 137 करोड़ पीपल को एक साथ लॉकडाउन में घर में रखना कोई मामूली चीज नहीं है. So he has taken risk, he has taken a decision, he has taken risk. एंड अनदर इज इमोशनल. और उसके बाद उन्होंने इमोशनल अप्रोच भी किया. हम सबको पता है कि जब वो टीवी पे आए थे, सब लोगों ने सब लोगों ने सुना था और उन्होंने बोला था कि अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हम 20 साल पीछे चले जाएंगे. और उसके बाद सब लोगों ने तय दिल प्रॉपर वे से वो लॉकडाउन को फॉलो किया था. देन इमोशनल अप्रोच रहता है. एंड लास्ट, बिल्ड अ टीम.
लीडर्स क्रिएट अ प्रोडक्टिव टर्म्स इन ड्रॉ द बेस्ट ऑफ पीपल। टीम क्रिएट करना एक लीडर का काम होता है। एंड अनदर क्वालिटी क्या होती है? द क्वालिटी इज सेल्फ नॉलेज। लीडर शुड बी नॉलेजेबल। अगर आप में नॉलेज नहीं है तो कौन आपकी सुनेगा? अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो वो फील्ड में तो हु विल फॉलो यू? आपके फॉलोवर क्रिएट ही नहीं होंगे। तो सेल्फ नॉलेज होना चाहिए और एक पेशेंस होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए, विजन होना चाहिए एक लीडर के पास। उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है और पेशेंस के साथ, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो लीडर की क्वालिटी होती है। कन्विक्शंस होना चाहिए। आप किसी को बोलते हो कि आप, नरेंद्र मोदी जी ने बोला दिए जलाओ, सबने दिए जलाए। नरेंद्र मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, सबने थाली बजाई। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कन्विक्शंस। एक लीडर का कन्विक्शंस, जो बोले सबको समझा देता है कि इस हिसाब से करना है और उसके बाद सब लोग उसको फॉलो करते आगे बढ़ते हैं। देन डेडिकेशंस एक लीडर में नहीं होगा तो किसमें होगा? क्या हम में होगा? आप में होगा। एक लीडर में वो डेडिकेशन रहता है। डेडिकेशन होगा तभी वो पर्सन लीडर बन सकता है। बाकी इसमें से अगर एक भी क्वालिटीज नहीं है तो यू कैन नॉट बी ए गुड लीडर। मैग्नेनिमिटी, पर्सन गिव्स अ क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। एक बंदा अगर कुछ काम अच्छा करता है तो उसको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेनिमिटी। ओपननेस होना चाहिए, अपना थॉट्स, अपना व्यू सबके साथ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी बर्डन शेयर करता रहता है। सो दिस आर द क्वालिटीज दैट लीडर्स शुड हैव। नाउ दिस इज द टाइम टू अनाउंस अनदर code, and another code is risk, RISK, risk. Leader should be a risk taker. Take a risk, RISK, risk. Now, at last, now finally we are near the end of this webinar, and I will provide you 7 secrets of inspiring leaders. Ignite your enthusiasm. You cannot be inspired unless and until you are inspired yourself. So self-motivation is the basic qualities that the leaders should have. And this is the secret of inspiring leaders, that ignite your enthusiasm. Enthusiasm में रहिए, ये मुर्दा लोगों की फौज नहीं है। ये तो जुनून का काम है, ये तो पेशेंस का काम है, ये आगे बढ़ने का काम है, जिंदगी में कुछ पाने का काम है। और तभी अ गुड लीडर आप बन पाओगे। और अगर आपको गुड लीडर बनना है, आपको मैनेजर नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। और गुड लीडर आपको बनना है, आप चाहते हो कि सब आपके साथ रहे, आपको सब फॉलो करें, तो देन आपके बॉडी में, आपके आसपास सब जगह इंथुजिज्म होना चाहिए। Navigate and course of an actions. Nothing extraordinary ever happened without leading, articulating a vision, a course of an action. उनको नेविगेशन आना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, स्पेसिफिक विजन होता है तभी आगे बढ़ पाते हैं। सो secret of inspiring leader is ignite your enthusiasm, navigate or having a specific vision, sell the benefits, risk and reward. रिस्क लेना पड़ेगा। थर्ड कोड हमारा बोला ना मैंने, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो सेल द बेनिफिट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, पेंट अ पिक्चर। Everything happens 2 times in the life. First, it happens in the mind of a person, and second, that happens into the reality. So, a leader should paint a pictures. Our brains are perform more for stories than the abstract or ideas. So, stories can also include the personal anecdotes, helping to establish a closer connections between leaders and teams. अनदर सीक्रेट इज इनवाइट पार्टिसिपेशन। सबको बुलाओ कि पार्टिसिपेट करो, काम में आओ, ये करो, वो करो, सब में एक एंथुसियाज्म स्प्रेड करो। गूगल वाइस प्रेसिडेंट Marissa Mayer once told me that she keeps a sign up sheets outside her door for office hours, and that are held each day at 4 p.m. She gives team members 15 minutes to voice their opinions or pitch new ideas. People want more than a paycheck, and they want to create a meaning. Invite them.
So this is how the leader take an initiative. They invite the people. They just inspire people, or they provocate that all the employees to come up to the dice and say whatever they wanted to. What are their viewpoints? एंड हो सकता है कि उनके व्यू पॉइंट को लीडर एक्सेप्ट करके पॉजिटिव वे से आगे बढ़ पाए. देन रीएनफोर्स ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए एक लीडर. उनका नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए. वो कभी ऐसा थिंक नहीं करना चाहिए कि ऐसा करेगा तो ये इसको ऐसा होगा या ऐसा एडवर्स इफेक्ट आएगा. ऑप्टिमिज्म इज द फोर्स मल्टीप्लायर. एंड एनकरेज पोटेंशियल्स. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टीम में भी होते हैं बहुत सारे लोग कि जिनमें बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है. तो वो कैपेबिलिटी को कैसे आगे बढ़ाना है, वो कैपेबिलिटी को कैसे वो उनको बाहर निकालना है, वो एक लीडर का काम है. और उनको तभी पॉसिबल है कि वो लीडर उनको एनकरेज करेगा. A good leaders are made, not born. If you have the desires and willpower, you can become an effective leader. A good leader develops through never-ending process of a self-study, education, trainings, and reading. See, बॉर्न सब ऐसे बोलते हैं कि लीडर्स बॉर्न होते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है. लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड अप. और हाउ कैन दे मेक देमसेल्फ बाय अपग्रेडिंग देमसेल्व्स थ्रू. लीडरशिप इज नॉट अ प्रोसेस कि एक बार आप लीडर हो गए तो चलो कल आज एक दिन के लिए हो गए आप लीडर हो गए, कल स्टॉप. ऐसा नहीं है. दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. एंड उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, कंटिन्यूअस अपग्रेड करना है. एंड लास्ट, this is the attitude that the leader should have. Yes, I can. So this is I hope you are enjoying our leadership this webinar. If you have any questions, just write in the comment box. And yes, even if you have attended all this webinar and if you are enjoying, don't forget to subscribe our channel SK Media Tech Team. We are continuously working for spreading positivity to the world. And yes, just write anything, whatever you feel after this attending a webinar. Even though you have attended a short portion of this webinar, just write anything in the comment box so that it motivates us and help us to be a good leader, right? So leadership is all about taking responsibility, not excuses. Thank you so much, and hope you enjoy this webinar. Jai Hind.